Okay guys, let's continue with the numericals of KTG. This is the third lecture in this session. Okay. In this particular lecture we will be solving different kind of numericals. So I hope you have studied proper formulas that are essential for solving numericals. So the first question that we are seeing was asked in MHT CET 2008. The type of the question is important over here. It is not the year at which it is asked. Okay. If the pressure exerted by two ideal gases are in the ratio 3:2, that means we have first given data as the pressure, that is P1 by P2 is given by 3/2. Further, they are saying that their densities are in the ratio 2:1. So that means you can say that ρ1 by ρ2 is equal to 2/1. Then the ratio of their RMS velocities is, मतलब मुझे रेशियो निकालना है उनके CRMS1 by CRMS2 का. Now for our convenience, why don't I ignore this RMS every time? So whenever I will write C1, it only indicates that I am in C1, CRMS only. Okay, so even if I am writing C1, it only means CRMS. So there has to be a formula जहाँ पे C, P and रो का रिलेशन आता है. एंड देन आई रियलाइज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम लेके एक डेरिवेशन किया था, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोला था, जिस डेरिवेशन से बॉयल्स लॉ सारी चीज़ें बाद में डिराइव हुई थी. एंड दैट डेरिवेशन स्टेट्स दैट P इज इक्वल टू 1/3 रो C square RMS, right? So if you observe carefully, my ultimate goal is to find out C. So it's better that I keep C at one side and rest of the things at the other. So I'll transfer this 3 over here and then rho at the bottom. So I'll get something like this. C square RMS is equal to 3P by rho. So if I take square root, I'll get C under root of 3P by rho. Now note down very important things. This 3 over here is constant, right? So that means square root of 3 I can convert into constant. If I convert that into constant, then that constant can further be converted into proportionality sign, है ना? That's why I can conclude that C is directly proportional to square root of P and it is inversely proportional to square root of density. तो जो भी directly proportional होती है चीज़, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 1:2 का 1:2. एंड जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीज़ है जैसे कि ये, तो उसको कैसे लिखेंगे? 1:2 का 2:1. C ओवर हियर, यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आई विल राइट C1 बाय C2, दैट इज 1:2 का 1:2, राइट? सो √P1 बाय √P2. एंड अभी डेंसिटी कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1:2 का क्या होने वाला है? 2:1. सो विल गेट ρ2 बाय ρ1, है ना? नाउ आई कैन पुट ऑल दिस क्वांटिटीज इन सेम स्क्वायर रूट. So I'll get P1 by P2 into ρ2 by ρ1. अभी ऑब्जर्व करो यहाँ पे P1 by P2 कितना दिया है? 3/2. इसका तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि मुझे ρ2 by ρ1 चाहिए, तो 2/1 का क्या हो जाएगा? 1/2. नाउ if I put all the things further, I will get C1 by C2 which is equal to 3/2 P1 by P2 का वैल्यू, और इसका उल्टा होके क्या हो गया? 1/2. What is 2 2s are 4. So I'll get something like this, square root of 3/4. But this 4 can be taken out from the square root. So I'll get C1 by C2 as √3/2. So if you observe, this is nothing but our option number D. Let's move to the next question. So in our next question, the question goes like this: two tanks of equal volume. So this is my first hint, right? So I'll write that hint. V1 is equal to V2. That's what they are saying. Contain equal mass of oxygen and nitrogen. So I can say that M1 is equal to M2. So ये तुम्हारा पहला given data हुआ कि वॉल्यूम इक्वल है. Then the second given data is that masses are equal. Then एक और चीज़ बोली है उन्होंने कि जो पहला वाला गैस है ना वो ऑक्सीजन है और सेकेंड वाला नाइट्रोजन है. सो जस्ट फॉर आवर क्लेरिफिकेशन, व्हाई डोंट आई डिनोट 1 एज ऑक्सीजन एंड 2 एज नाइट्रोजन? बोथ ऑफ देम आर डायटोमिक, तो इसका टेंशन नहीं लेना है. बोथ ऑफ देम आर डायटोमिक ना, तो उनका गैमा का वैल्यू भी क्या रहेगा? सेम रहेगा. व्हाट इज गैमा? गैमा इज नथिंग बट एडियाबैटिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं? Cp by Cv से.
Okay, one more thing they have mentioned, and that is nothing but temperature. So this temperature for both of this gas is same, क्योंकि एक ही दिया है और दोनों एक ही टेम्परेचर पे मेंशन किए. So you can say T1 will be equal to T2 will be equal to 127. But remember this, in KTG we put temperature in kelvins only. So you have to convert this 127 by adding 273 to it. What is 7 plus 3? 0. 1 7 2 8 9 300. I think we will get 400 Kelvin as the temperature conversion. So this is 400 Kelvin. So you got different temperature. Now apart from that, you should also remember what are molar masses of oxygen as well as nitrogen. So molar mass of oxygen is 32 and molar mass of nitrogen is 28. We will be needing it. अभी क्या निकालना है हमें? तो पहली चीज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन टू टैंक्स, बट वो सिर्फ वो नहीं निकालना है, मतलब N1 N2 कैपिटल N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कैपिटल N1 और N2 उनका रेशियो निकालना है. देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ, तो मुझे N1 बाय N2 का रेशियो निकालना है, एंड देन सेकेंड चीज़ P1 बाय P2 का रेशियो निकालना है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. क्या किस किस का रेशियो चाहिए मुझे? पहली बात तो N1 बाय N2 का, एंड सेकेंड चीज़ P1 बाय P2 का. नाउ सी हाउ वी कैन बिगिन दिस पर्टिकुलर थिंग. तो अभी पहली चीज़ तो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, एंड आई हैव दिस पर्टिकुलर गोल्डन थिंग दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल. सो व्हाई डोंट आई स्टार्ट विद दैट थिंग. सो V1 इज इक्वल टू V2 बोला है, एंड यू रियलाइज दैट राइट कि PV इज इक्वल टू NRT होता है. दैट मीन्स आई कैन कंक्लूड दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाई P. आई कैन पुट दिस एंटायर टर्म ओवर हियर. So I will get N1 R T1 upon P1 is equal to N2 R T2 upon P2. ये एक चीज़ मेरे को मिल गई. बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. अभी देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन है, जैसे कि अपना टेम्परेचर कॉमन है, तो T1 T2 कैंसल. ये तो गैस कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है. सो एट द एंड अगर मैं टर्म्स को शिफ्ट कर दूँ, ये N2 को नीचे कर दूँ, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट N1 बाय N2 इज इक्वल टू P1 बाय P2. बराबर. तो मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो मिलेगा तो मुझे प्रेशर इन टू टैंक्स का भी रेशियो मिल जाएगा. देन आई ऑल्सो रियलाइज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स. ध्यान से सुनो, क्या मैं N को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स को? इट गोज लाइक दिस ना, N1 एक का ही लिखते हैं पहले. स्मॉल n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. राइट गाइस, ये याद रहेगा तुम लोग को. स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. सो दैट मीन्स अगर मैं इन चीज़ों का रेशियो ले लूँ, अगर समझो मैंने N1 बाय N2 किया, सो आई विल गेट N1 बाय एवोगैड्रो नंबर अपॉन N2 बाय एवोगैड्रो नंबर. बट ये एवोगैड्रो नंबर तो एक ही कांस्टेंट है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. व्हाट विल आई गेट एट द एंड रिजल्ट? दैट इज N1 बाय N2. तो मतलब जो भी रेशियो स्मॉल N1 बाय N2 का होगा वही रेशियो बिग N1 बाय N2 का हो जाएगा. तो मुझे एक और चीज़ यहाँ से प्रूव हो गई, एक और फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन हो गया, दैट स्मॉल N1 बाय N2 is equal to P1 by P2 is equal to big N1, that is number of molecules N1 by N2. Now you do realize this, right? तो अगर even though मुझे यहाँ पे 1 में N1 by N2 बोला है और 2 में P1 by P2 बोला है, दोनों का आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, राइट? और दोनों के आंसर के लिए आई एम गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर गाय N1 by N2. अभी वो कैसे, वो देखो क्या होता है. N1 by N2 का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है ना n का, एंड n इज नथिंग बट मास अपॉन मोलार मास, क्योंकि मोलार मास का डेटा गिवन है, ये भी याद करो. तो अगर मैं इसको रेशियो में लिखूँ, दैट इज N1 बाय N2, आई विल गेट M1 अपॉन मोलार मास 1, M2 अपॉन मोलार मास 2. राइट? अभी याद करो तो तुम लोग को याद आएगा कि M1 और M2 क्या है? इक्वल है. तो M1 M2 इक्वल हुआ तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल. जैसे ये कैंसिल होते हैं तो एज this quantity will become 1 divided by MO1
1 डिवाइडेड बाय MO2, ये उल्टी हो जाएंगे ना, मतलब ये ऊपर आएगा और ये नीचे चला जाएगा. सो व्हाट विल आई गेट एट द एंड? आई विल गेट N इज इक्वल टू MO2 डिवाइडेड बाय MO1. बट 2 किसका था? 2 नाइट्रोजन का था और उसका वैल्यू क्या था? 28. सो आई कैन फर्दर राइट इट एज 28 बाय 32. ओके, दिस शुड बी N1 बाय N2. So what is 28 by 32? If I solve it further, if I divide it by 2, so I'll get 7 by 8. डिवाइडेड बाय 2 से नहीं आएगा, 2 से 16 हो जाएगा, 16 का. ओके, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4. 4 7 ज़ा 8 एंड 4 8 ज़ा 32. तो मुझे आंसर क्या मिला? 7 by 8. यही 7 by 8 यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ N1 by N2 के जगह. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट माई फाइनल रिजल्ट, दैट इज P1 by P2 is equal to N1 by N2, which will be equal to 7 by 8. I hope you understood it. So this is my final answer. Let's move on to the next question, and this is easy one. The kinetic energy of 1 kg of oxygen gas at 300 Kelvin is 1.356 into 10 raised to 6 जूल. तो मुझे एक काइनेटिक एनर्जी का डेटा अवेलेबल है. वो बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज 1.356 into 10 raised to 6 joule, but at what temperature? At T1 is equal to 300 Kelvin. बराबर. फिर बोल रहे हैं कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो 4 kg के लिए निकालना है, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, बट कितने टेम्परेचर पे निकालना है? एट 400 केल्विन. देख भाई, तेरे को 4 kg का निकालना है, आई एग्री, बट तेरे पास गिवन डेटा तो 1 kg का है. तो वाई डोंट वी सॉल्व फर्स्ट फॉर 1 kg एंड देन वी विल थिंक अबाउट 4 kg, है ना? तो मुझे सेकेंड काइनेटिक एनर्जी नहीं पता. E2 इज वी हैव टू फाइंड आउट. कब? जब टेम्परेचर होगा 400 केल्विन. मैंने पहले चेक किया कि टेम्परेचर केल्विन में है कि नहीं. अगर नहीं है तो तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. और एक चीज़ तुम्हारे लिए याद करने के लिए, याद रखो इसलिए कि ये जो दोनों डेटा है वो 1 kg के लिए है. हाँ, अभी देखो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग. तो वी शुड नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टी, है ना? सो मुझे एक फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का, एंड दैट फॉर्मूला गोज लाइक दिस. काइनेटिक एनर्जी इज F/2 RT, वेयर F इज नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम. बट यहाँ पे अगर दोनों गैस सेम है तो दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम होगा. सो F विल बी कांस्टेंट, 2 विल बी कांस्टेंट, R विल बी कांस्टेंट. यू कैन स्ट्रेट अवे कंक्लूड दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एंड अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो मैंने क्या सिखाया था? 1:2 का 1:2 होता है. सो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट E1 बाई E2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, है ना? तो अभी E1 का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम लोग. सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. E1 would be 1.356 into 10 raised to 6 अपॉन E2 हमें निकालना है T1 300 एंड T2 400. नाउ क्या करोगे? इसको फर्दर सॉल्व करोगे, जो भी जीरोज है वो कट करोगे एंड देन आंसर फाइंड आउट करोगे. सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ टफ नहीं है, लॉक करने की ज़रूरत नहीं है. बट स्टिल इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट बाय लॉग, nobody is going to stop you. So N2 4/3. I'm going to solve it using calculator and I got the answer as 1.8 into 10 raised to 6 जूल. ये तुम्हारा किसके लिए हुआ है? ये 1 kg के लिए हुआ है ना, if you remember it. So this is true for 1 kg. Why don't we find it out for 4 kg? So therefore for 4 kg E2 will be equal to 4 times 1.8 into 10 raised to 6. Simply 4 से multiply कर दो. तो if I multiply it by 4, I'll get answer as 7.23 into 10 raised to 6 joule. Let us check जो आंसर वहाँ पे दिया है वही आंसर आया कि नहीं. Yes, we got 7.23 into 10 raised to 6 joule.
moving on to the next question. This is kind of a theory question actually, but I thought कि as it is combination of two concepts, it would be beneficial for you. So देखो, for a planet the escape velocity is v. The presence of atmosphere on the planet shows that, मतलब escape velocity v बोला है. Now how many of you remember escape velocity from our gravitational lecture? Escape velocity is minimum velocity required to escape Earth's gravitational influence, right? तो मतलब अगर किसी चीज़ ने इतनी वेलोसिटी अचीव कर ली तो वो आराम से भाग सकता है अर्थ से, अर्थ को छोड़ के जा सकता है. सो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, ज़्यादा अभी एकदम फिजिक्स में नहीं जाएंगे. तो v क्या हुआ? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ v? इजंट इट अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r. अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है? ये g होता है, इसको हम लोग न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं. ये m होता है, वो क्या होता है? इट इज़ मास ऑफ प्लैनेट, राइट? सो दिस m इज मास ऑफ प्लैनेट. एंड कैपिटल R क्या होता है? मास, सॉरी R होता है रेडियस ऑफ प्लैनेट. तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे किधर भी मैंने ऑब्जेक्ट का मास नहीं लिया. द रीज़न इज दैट एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास. मतलब जितना वेलोसिटी एक रॉकेट को एस्केप करने के लिए लगेगा, उतना ही वेलोसिटी लगेगा किसी गैस के मॉलिक्यूल को एस्केप करने के लिए. एंड फॉर अर्थ, जस्ट फॉर योर नॉलेज, बहुत सारे लोगों को पता होगा, फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अभी ये तो मैंने बताया एस्केप वेलोसिटी के बारे में, बराबर. अगर इतना वेलोसिटी गैस अचीव कर पा रहा है, इतना वेलोसिटी 11.2, या फिर ये फॉर्मूला से जो आएगा वो एक्यूरेटली इतना, तो इसका मतलब ये है कि अगर गैस का आरएमएस स्पीड क्या होता है? वो वेलोसिटी जो गैस के पास एग्जिस्ट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रूम में हूँ और रूम में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, तो वो कौन से वेलोसिटी के साथ घूमेंगे? वो घूमेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ. दैट मीन्स वी आरएमएस से अपने आजू बाजू वाले गैस मॉलिक्यूल घूम रहे हैं. अगर समझो इफ वी आरएमएस बिकम्स इक्वल टू v becomes equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है? कि गैस मॉलिक्यूल्स विल एस्केप. अरे बट ऐसा हो रहा है क्या? नहीं ना. क्वेश्चन में क्या बोला है? द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है, मतलब मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा रहे. इट ओनली इंडिकेट्स वन थिंग, क्या? कि जो वी आर एम एस है वो एस्केप से कम है. समझ रहे हो? वी आर एम एस 0 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं केटीजी के हिसाब से, बराबर. अगर इक्वल हो रहा है तो आराम से एस्केप हो रहा है, और अगर ग्रेटर भी हो रहा है तो भी वो एस्केप हो रहा है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? मिनिमम वेलोसिटी, राइट? तो दैट मीन्स अपना करेक्ट ऑप्शन इज सी. सॉरी, उल्टा लिखा मैंने. VRMS is less than V. Let's move on to the next question. Now in this particular question you will require a little bit basic from your 11th standard. तो उन्होंने क्या बोला है? If CS is the velocity of sound in air and C is the RMS velocity, then what is the relation between CS and C? Now ये question entrance में आया था. एक चीज़ देखो, ये अगर ऑप्शन आया ना none of these, तो मतलब समझो there are infinite possible answers. मतलब फिर वाट लग जाती है स्टूडेंट्स की. नन ऑफ दिस आया तो क्या, मतलब कुछ भी आंसर आ सकता है ना, नन ऑफ दिस मतलब. बट ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है. देखो कैसे. पहली बात तो 11th का कंसेप्ट से याद करना पड़ेगा तुम लोग को. न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड के लिए, CS इज नथिंग बट माई स्पीड ऑफ साउंड गाइज, ओके. सो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड के लिए एक फॉर्मूला दिया था P/ρ, है ना? याद करो, दिस वॉज न्यूटन्स फॉर्मूला. ये फॉर्मूला यूज करके जो आंसर आया था वो आंसर समथिंग कम आया था, मतलब बेसिकली 288 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ आया था.
बट एक्चुअल में साउंड का स्पीड उतना नहीं होता. साउंड का स्पीड 330 या फिर 340 के आसपास होता है ना. एयर वैक्यूम में 340, बट फॉर अदर रीजन्स इट इज़, वैक्यूम बोला मैं गलती से, वैक्यूम में तो साउंड ट्रैवल ही नहीं करता. मतलब फॉर एयर इट इज़ नियर बाय 330 मीटर पर सेकेंड. अभी देखो ये जो न्यूटन का आंसर आया था वो आंसर आ रहा था 288 समथिंग. ये तो रॉन्ग हुआ ना. एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंटेशन किया गया तो 330 के आसपास आने लगा था. तो मतलब न्यूटन का फॉर्मूला गलत हो रहा था. टू करेक्ट इट लैप्लास ने एक चीज़ ऐड की उस फॉर्मूला में. उसने बोला न्यूटन वाई आर यू इग्नोरिंग एडियाबैटिक इफेक्ट. तो उसने गैमा को इंट्रोड्यूस किया था. ये था लैप्लास करेक्शन. तो जैसे लैप्लास ने इसमें करेक्शन किया फॉर्मूला में न्यूटन के, हमें एग्जैक्ट आंसर मिलने लग गया. जो प्रैक्टिकली आंसर आ रहा था वही थियोरेटिकली भी आने लग गया. दैट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट फॉर्मूला. हम भी कौन सा, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. एंड अभी तुम लोगों ने एक फॉर्मूला फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया था, P इज इक्वल टू 1/3 देन रो सी स्क्वायर. इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, C विल बी इक्वल टू 3p/रो. गाइस याद रखो C मतलब CRMS है ना. अभी दोनों फॉर्मूला में एक चीज़ कॉमन है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ p/रो, स्क्वायर रूट ऑफ p/रो. क्यों ना मैं ये नीचे वाले फॉर्मूला में कुछ ऐसा करता हूँ, दिस इज √3 स्क्वायर रूट ऑफ p/रो. सो कैन आई राइट C/√3 एज स्क्वायर रूट ऑफ p/रो, है ना. अभी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ p/रो है वो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूँगा. सो वंस आई सब्सटीट्यूट इट आई विल गेट देयरफॉर CS वुड बी इक्वल टू रूट गैमा ऑलरेडी था और √p/√रो के जगह क्या आएगा, C/√3. थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं. सो CS विल बी इक्वल टू γ/3c. अभी देखोगे तो स्क्वायर रूट को वी कैन राइट इट एज रेस टू 1/2 ऑल्सो. मतलब स्क्वायर रूट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो हमें मिला आंसर, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर C. आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the RMS speed of a gas at 800 Kelvin? ओके, एंड ये 2012 का CET क्वेश्चन है. RMS स्पीड निकालना है हमें कितने केल्विन के लिए, 800 केल्विन. और ऑप्शंस देखो कैसे है. मेरे को सिर्फ इतना ही डेटा दिया है, मुझे C निकालना है, CRMS एट वॉट टेम्परेचर 800 केल्विन. और दूसरा डेटा क्या दिया है, 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 200K, हाफ द वैल्यू एट 200K, ट्वाइस द वैल्यू एट 200K, सेम एट 200K. चारों ऑप्शन में एक ही चीज़ कांस्टेंट है, दैट इज 200K. तो यहाँ से मुझे टेम्परेचर का दूसरा डेटा मिल गया. जैसे ही ये मुझे डेटा मिल गया मेरा प्रॉब्लम एकदम ईजी हो जाएगा. जैसे कि लेट्स से C1 मेरा डेटा है, मुझे निकालना है. हाँ, सेकेंड चीज़ T1 दिया है 800 केल्विन एंड T2 कितना दिया है, ऑप्शन से मिला मुझे 200 केल्विन. नाउ इफ आई रिमेंबर देयर इज रिलेशन बिटवीन C एंड T एंड दैट फॉर्मूला गोज लाइक दिस, C इज इक्वल टू √3RT अपॉन m0. अभी नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग इसको मॉडिफाई करने के लिए, तो कांस्टेंट चीज़ों को हटाएंगे. जैसे 3R m0 हट जाएगी एंड प्रोपोर्शनैलिटी आएगा. सो आई कैन कंक्लूड दैट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T. इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने थियरी करते वक्त भी कुछ इसी तरह से प्रूव भी किया था. प्रूव दैट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T. वॉट एल्स इज दैट, मैंने ये भी बोला था कि दिस इज नथिंग बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो अभी देखो क्या करने वाले हैं हम लोग इसमें. अभी एज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वही अपना फंडा यूज़ करेंगे, 1/2 का 1/2. सो आई गेट C1/C2 इज इक्वल टू √T1/T2. कंबाइंड रूट लिया मैंने, बराबर. तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू है 800, T2 का वैल्यू कितना है 200. सो इफ़ आई सॉल्व इट फर्दर आई गेट √4, है कि नहीं. √4 क्या होता है, 2 होता है. सो आई कैन कंक्लूड दैट C1/C2 इज नथिंग बट 2. या फिर आई कैन से दैट C1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स C2. मतलब C1 का वैल्यू ट्वाइस C2 होगा. अभी ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ट्वाइस द वैल्यू एट 200 केल्विन. सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग वन. N balls
sorry about that, n balls of each mass m and moving with the same velocity. ओके हाँ, मतलब हमारे पास n नंबर ऑफ बॉल्स है जो मास m से मूव हो रहे हैं एक वेलोसिटी के साथ वॉल को हिट कर रहे हैं, एंड टाइम भी दिया है 2 सेकेंड. नॉर्मली मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर. नॉर्मली क्या मतलब समझो अगर ये अपना वॉल है और ये वॉल के ऊपर बॉल स्ट्राइक हो रहा है, तो दैट मीन्स ये बॉल ऐसे एक्ट हो रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वॉल. बॉल ऐसे स्ट्राइक नहीं कंसिडर करना है, एंगल पे कंसिडर नहीं करना है. अगर एंगल पे कंसिडर करते तो चीज़ें और टफ हो जाती, हमें वो रिजॉल्व करना पड़ता मोमेंटम को, बट यहाँ पे चीज़ें सिंप्लीफाइड है. ओके तो अभी देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल्स ऑन द वॉल, ये निकालना है अपने को. अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ तुम लोग याद करोगे तो फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इंटरेस्टिंगली जो टाइम दिया है अपने को वो 2 सेकेंड दिया है, तो इंस्टेड ऑफ dt आई कैन राइट 2. द ओनली प्रॉब्लम इज dp. अगर तुम लोगों को डेरिवेशन याद आ रहा होगा अपना मेन वाला, जिसमें हमने लोगों ने प्रूव किया था p इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर RMS, तो एक इंटरमीडिएट स्टेप था जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू mu, देन ये लिखा था फाइनल मोमेंटम विच वॉज इक्वल टू माइनस mu, क्योंकि फिर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा ना वो. जैसे कि mu के लिए वो टूवर्ड्स राइट जा रहा है, माइनस mu क्यों आ रहा है, क्योंकि वो टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो u का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम देम, इफ आई राइट dp, दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सो आई विल गेट इट एज माइनस 2mu. मिला. दिस इज फॉर 1 बॉल या फिर फॉर 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बॉल हो जाएगा. और एक चीज़, ये मोमेंटम बॉल लूज कर रहा है, तो वॉल कितना गेन करेगा, वॉल गेन करेगा गेन इन मोमेंटम बाय वॉल विल बी इक्वल टू +2mu, राइट. और ये तो एक बॉल के लिए होगा. फॉर n नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब अगर 10 बॉल होते तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, अगर 20 बॉल होते तो 20 से मल्टीप्लाई करता. देयरफॉर n नंबर ऑफ बॉल माई dp विल बिकम 2mu टाइम्स n. क्यों ना मैं इस dp को ऊपर पुट कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे जाने दो, नीचे पुट कर देता हूँ ताकि आपको कंक्लूजन भी समझेगा. सो देयरफॉर f विल बी इक्वल टू 2mu n, और टाइम कितना था 2 था, तो 2 गेट कैंसल. f कितना मिलेगा, मुझे f मिलेगा mu n, एंड दैट वुड बी ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट, calculate the RMS speed of oxygen molecules at 225 degrees Celsius. Density of oxygen at NTP is 1.42, okay, and 1 atmosphere. मतलब प्रेशर दिया है, तो मतलब देखो मुझे क्या क्या चीज़ें दी है. मुझे RMS स्पीड निकालना है एट टेम्परेचर 225, तो दैट मीन्स आई कैन यूज समथिंग लाइक दिस. C RMS would be question mark. Then the next thing that we have to consider is the given data that is available for us. क्या क्या given data available है अपने पास, कि at कौन सा टेम्परेचर निकालना है. we have to find it at 225 डिग्री सेल्सियस. एक और चीज़, हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस में नहीं रख सकते, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग इन केल्विन. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं 273. So let's add 273 in this particular segment. So what is 225 plus 273? 5 plus 3, 8, 7 plus 2, 9. I think I am getting it as 498 Kelvin. I hope you are understanding what I am doing. ओके तो एक टेम्परेचर मुझे मिला, कौन सा टेम्परेचर है 498 केल्विन. इस टेम्परेचर पे मुझे CRMS निकालना है, बट ना मेरे पास C0 अवेलेबल है, ना मेरे पास T0 अवेलेबल है. T0 क्या होता है, T0 अपना 0 डिग्री सेल्सियस होता है. याद रखो NTP बोला है, NTP पे हम लोग इसको लेते हैं 0. सो T0 इज इक्वल टू, T0 विल बेसिकली बिकम 273 केल्विन. डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो मेरे पास T0 अवेलेबल है. बट T0 के लिए T0 टेम्परेचर पे क्या होता है C0, वो कैसे निकालेंगे. तो द फॉर्मूला फॉर दैट गोज लाइक दिस. ध्यान से सुनो, अभी बहुत बार यूज करके P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर को मॉडिफाई करके कैसे लिखा था, C विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P बाय रो. आई होप यू रिमेंबर इट डायरेक्टली नाउ.
सो इफ़ यू रिमेंबर इट डायरेक्टली वी कैन डायरेक्टली राइट इट. सो दैट मीन्स अगर मुझे सी नॉट निकालना है, सो दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ 3p नॉट अपॉन रो नॉट, बराबर कि नहीं. अभी और क्या क्या गिवन डेटा दिया है मुझे, पी नॉट दिया है 1.013 इंटू 10⁵ एंड रो नॉट क्या दिया है, रो नॉट दिया है 1.42 kg per meter cube. Why don't I put all this data? So 3 P naught का वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन रो नॉट का वैल्यू 1.42. Now if you solve it further you will get C naught का आंसर. Let me use calculator to find the answer. So under root of 3 Okay, so we are getting the answer as 462.6 मीटर पर सेकेंड. बट दिस इज सी नॉट, राइट गाइज. ये टी नॉट टेम्परेचर पे आया था. एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सी एंड टेम्परेचर, ये भी हम लोगों ने अभी किया. सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी. सो व्हाट विल यू गेट एट द एंड. सो सी नॉट अपॉन सी जो हमें निकालना है विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी नॉट अपॉन टी. सो टी नॉट तो कितना आया था अपना 273 एंड टी कन्वर्ट करने के बाद 498. सी नॉट का वैल्यू मैं इधर पुट करूँगा 462.6. देन आई विल गेट सी एज द आंसर. सो लेट मी कैलकुलेट दैट फॉर यू. Okay, and we get answer as 624.80 मीटर पर सेकेंड. वो तो स्पीड बढ़ने ही वाला है क्योंकि स्पीड का रिलेशन डायरेक्टली टेम्परेचर से है. और अब पहले अपना टेम्परेचर कितना था 273, बाद में टेम्परेचर कितना हो रहा है, सॉरी केल्विन में 498 केल्विन. सो 273 केल्विन से 498 केल्विन हो रहा है कि नहीं. टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड भी क्या हो गया, बढ़ेगा ही ना. तो स्पीड भी बढ़ रहा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट व्हाट टेम्परेचर will be the RMS speed of hydrogen molecules will be half of its value at 327 degree. ओके, सो तुमको टेम्परेचर निकालना है, ऐसा टेम्परेचर जिसके लिए RMS स्पीड विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 327 डिग्री. सो समझो मेरे पास एक C1 करके कुछ वैल्यू है. फॉर C1 टेम्परेचर कितना था 327 डिग्री सेल्सियस प्लस 273. सो इसको ऐड करूँगा मैं. सो आई विल गेट 0 1 0 600. सो आई एम गेटिंग T1 एज 600 केल्विन. जब टेम्परेचर 600 केल्विन था तो स्पीड C1 था, बराबर. अभी यही जो सेकेंड स्पीड है ना, मॉलिक्यूल्स भी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब C2 का वैल्यू C1 के वैल्यू से हाफ होना चाहिए, ये उन्होंने बोला है. अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो तुम्हारा टेम्परेचर T2 कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है. अगर टेम्परेचर इतना होता है फॉर C1, तुम्हारा टेम्परेचर इतना था. नाउ अगर C2 इज इक्वल टू C1/2 है, देन T2 कितना हो जाएगा यार, सॉरी अबाउट दैट. सो नाउ इफ ओके, सो मुझे T2 निकालना है. कैसे फाइंड आउट करें. C का रिलेशन था, डायरेक्टली दिया हुआ था मैंने कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T. व्हाई डोंट आई यूज दैट. सो C1/C2 विल बी अंडर रूट ऑफ T1/T2. अभी C1 तो एज इट इज़ पुट करूँगा, बट C2 के लिए मुझे फॉर्मूला अवेलेबल करके दिया है. C2 क्या बोला है, C1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ T1. T1 कितना दिया है 600 अपॉन T2 मुझे निकालना है. द बेस्ट वे टू डू इट इज़ टू डू स्क्वायर, बट बिफोर दैट लेट्स कैंसल आउट कॉमन टर्म्स. जैसे कि C1 कैंसल आउट हो जाएगा. ये जो 2 1 अपॉन में है इसीलिए ऊपर जाएगा. मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा. आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. आई विल गेट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 600 अपॉन T2. वाई डोंट आई डू स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, तो चीज़ें और सिंपल हो जाएगी. तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4,
फिर 600 एज इट इज़ अपॉन T2, राइट। तो T2 अभी इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड 600/4 मिलेगा हमें। सो व्हाट इज 600/4? सो कैलकुलेट करते हैं। सो दैट वुड बी 300, और 300 का हाफ 150. So we will be getting T2 as 150 केल्विन। अभी बोलोगे 150 केल्विन सर, तो मतलब बहुत कम हो गया ना? हाँ बिल्कुल हो गया। डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करके देखते हैं ना हम लोग इसको। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट T2, दैट वुड बी T2 इन केल्विन माइनस 273. सो दैट इज आंसर करते हैं इसको 150 माइनस 273, यू गेट आंसर एज माइनस 123 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर नेगेटिव में भी टेम्परेचर आ रहा है डिग्री सेल्सियस में, तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है? गैस के मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी तो होगा। एक ही टेम्परेचर है जिसके लिए गैस के मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ऑलमोस्ट ज़ीरो आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I think this will be our last question. Okay, and question goes like this. Okay, guys, let me make a little bit correction. आई थिंक वी हैव डन लिटिल बिट मिस्टेक. तो यहाँ पे हमें जो गिवन डेटा दिया था वो NTP के टर्म्स में दिया था, राइट? एंड फॉर NTP द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, नॉट ज़ीरो एज आई रिटर्न. सो 20 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो जाएगा? 293.15 केल्विन समथिंग. सो नाउ आई हैव टू मॉडिफाइड माई डेटा. सो दिस 273 विल बी रिप्लेस्ड बाय 293.15 एंड जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी वो चेंज हो जाएगा. सो लेट्स करेक्ट इट. दिस विल बी 293.15. सो इफ़ वी सॉल्व इट फर्दर, अगर STP बोलते हैं ना, STP, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस आता है टेम्परेचर. 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस. बट यहाँ पे इन्होंने NTP बोला है ना, सो दैट्स वाई आई हैव टू modify it under 293. so it is square root of 293.15 divided by 498 multiplied by, just give me a minute. So C would be C0 divided by this quantity, that is square root of 293.15 upon 498. So answer is 0.767. एक ही सिंपल सी गलती हो गई मेरे से कि NTP में टेम्परेचर जो होता है वो होता है 20 डिग्री समथिंग, हाँ, और STP में हम लोग टेम्परेचर को लेते हैं, स्मॉल टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस. तो अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूँ टेम्परेचर को, तो 20 का 293 हो जाएगा, एंड STP में अगर देखोगे तो 0 का 273. तो मैंने NTP सॉल्व करते करते गलती से STP की तरह सॉल्व कर लिया. बाकी सब चीज़ें सेम है, जस्ट दिस थिंग विल बी डिफरेंट. अच्छा, C0 कितना आया था? 462.6, राइट? सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, 462.6 डिवाइडेड बाय 0.767. सो इफ वी सॉल्व इट फर्दर, 462.6 डिवाइडेड बाय 0.767. गलतियाँ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज थ्रू द मिस्टेक्स ओनली वी लर्न कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं. सो ये दिस इज़ व्हाट वी गेटिंग एट मीटर पर सेकेंड. अभी हो गई तो चलेगा, एग्जाम में मत करके आना, नहीं तो बोलोगे सर ने बोला था गलतियाँ करनी है, तो हम लोगों ने भी कर ली. ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या करता है. इफ़ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10% आइसोथर्मली, देन इट्स वॉल्यूम विल, मतलब वॉल्यूम में कितने से चेंज होगा वो निकालना है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना बहुत सारे आते हैं. CET में आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, नीट में आते हैं, JEE में रेयरली आते हैं.
रेयरली मतलब बहुत रेयरली आते हैं, बट नीट और सीईटी जैसे लेवल पे ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये क्या होता है कि समझो एक क्वांटिटी है ना, या तो वो डिक्रीज़ करते हैं या तो इंक्रीज़ करते हैं, उसके साथ दूसरे क्वांटिटी में क्या चेंजेस होंगे वो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहली बात, स्टेप 1 में हम लेते हैं गिवन को। क्या गिवन बोला है तुम्हारे पास? तो बोला है कि प्रेशर जो है, फाइनल प्रेशर वुड बी डिक्रीज्ड बाय इनिशियल प्रेशर। तो मतलब जो भी इनिशियल का वैल्यू होगा उससे कम होगा। कितने से कम होगा? 10%। अगर ये मैं एज इट इज़ लिखूंगा सो इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि मैं किसी भी यूनिट से नंबर को माइनस नहीं कर सकता। दैट्स वाई देयर इज अ स्टैंडर्ड वे टू राइट इट। वी राइट इट एज P2 इज इक्वल टू P1 माइनस 10% ऑफ P1। मतलब मैं 100% से कितना परसेंट माइनस कर रहा हूँ? 10%। तो मुझे मिलेगा कितना? 90%। सो आई विल गेट 90% ऑफ P1. So if I modify it further, I'll get something like this. P2 is equal to 90 by 100 of P1, which can be written as 0.9 P1. तो यहाँ से मुझे गिवन का रिलेशन मिल गया। मुझे मिल गया है P2 is 0.9 P1। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है ये। यहाँ पे आपका एक स्टेप खत्म हो गया। फिर स्टेप 2 क्या है देखो। स्टेप 2 है टू फाइंड। क्या टू फाइंड करना है अपने को? वॉल्यूम फाइंड करना है। बट वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मुझे कुछ तो रिलेशन मालूम होना चाहिए। ओके, रिलेशन बिटवीन गिवन एंड टू फाइंड। ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख के दे रहा हूँ ताकि ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन तुम्हें आए तो तुम्हें आ सके। सो रिलेशन बिटवीन गिवन एंड टू फाइंड यूज़ करना है। अभी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम? कोई प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है? हाँ, आई डू रिमेंबर बॉयल्स लॉ। क्या बोलता है बॉयल्स लॉ? कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बराबर ना? तो अगर कोई चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 1:2 का 2:1। सो P1 by T2 विल नाउ बिकम V2 by V1। ओके, और रिलेशन बिटवीन गिवन एंड टू फाइंड। नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे हम लोग? P2 का जो भी डेटा अवेलेबल होगा ना, जैसे कि ये 0.9 P1, वो यहाँ पे पुट करेंगे। सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। P1 अपॉन 0.9 P1 वुड बी इक्वल टू V2 बाय V1, राइट? अभी देखो आगे क्या होने वाला है। P1 विल गेट कैंसल्ड आउट। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा V2 बाय V1 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.9। अभी देखो ध्यान से समझो, मैं इसको और आगे मॉडिफाई करूँगा तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, राइट? V2 इज़, या फिर ऐसे लिखते हैं, V1 इज़ 0.9 टाइम्स V2। अभी मुझे ये डिटरमाइन करना है कि ग्रेट कौन सा है या फिर बड़ा कौन सा है। विजुअलाइज करो कैसे कर सकता हूँ मैं ये। तो V2 के जगह अगर मैं 10 डालूंगा, कितना वैल्यू डाल रहा हूँ? 10। सो मैं V2 10 पुट कर रहा हूँ। सो व्हाट विल आई गेट? 0.9 इंटू 10। सो 0.9 इंटू 10, व्हाट विल बी द आंसर? 9। तो मतलब V2 का वैल्यू 10 था और V1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 9। तो दैट मीन्स V2 इज़ ग्रेटर दैन V1। और ये जो चीज़ मैंने अभी की ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ये भी हमें लगने वाली है। V2 इज़ ग्रेटर दैन P1। तो एक प्रेशर की चीज़ लगी थी मुझे, फिर ये लगने वाली है, फिर ये लगने वाली है, दैट इज़ V2 इज़ ग्रेटर दैन V1। अभी जो स्टेप 3 आता है वो आता है इंपॉर्टेंट सा स्टेप, और सारी चीज़ों को सॉल्व कर देगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सब में एप्लीकेबल है, मतलब सब में, मतलब ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन में दिस फॉर्मूला इज़ एप्लीकेबल। एंड व्हाट डज दिस फॉर्मूला से? देखो ध्यान से क्या बोलता है ये फॉर्मूला। हायर माइनस लोअर अपॉन इनिशियल, बॉटम में हमेशा इनिशियल ही आएगा, इनटू 100। अभी ध्यान से देखो, हायर क्या है अपना? V2 है, यही तो मैं निकालना चाहता था। सो आई विल राइट V2 माइनस V1 अपॉन इनिशियल क्या होगा? V1, राइट? इनटू 100। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। V1 क्या है? 0.9 V2, तो मैं V1 को सब्सटीट्यूट करूँगा। आई विल गेट V2 माइनस 0.9 V2 अपॉन 0.9 V2 इंटू 100। सो वाई डोंट आई मॉडिफाई इट फर्दर? सो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा? देयरफॉर व्हाट इज V2 माइनस 0.9 V2? इसमें से ये माइनस करूँगा
तो मुझे 0.1 मिलेगा. सो आई विल गेट 0.1 V2 अपॉन 0.9 V2 विल बी इनटू 100. अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 0.1 V2 कैंसिल हो जाएगा. सो क्यों ना हम लोग V2 को कैंसिल आउट कर देते हैं. अभी बचेगा चीज़ कौन सी? 1/9. सो आई कैन राइट इट एज 100/9. सो आंसर कितना आएगा 100/9 इसको सॉल्व करूँगा तो. सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11.11%. तो वॉल्यूम कितने से चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है 11.11% से. बट गाइज याद रखो मेरा प्रेशर कितने से डिक्रीज़ हो रहा है ना प्रेशर. तो अगर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है एंड एज द वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो मेरा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज़ होगा. सो दैट्स वाई माई करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीज बाय 11.1%. आई होप तुमको ये लेक्चर अच्छे से समझा है और इसी टाइप के सम सॉल्व करने की कोशिश करो. एंड इफ़ यू हैव डाउट यू नो वेयर टू आस्क.